A student, sorry, the Faraday's constant the charge in coulombs carried by 1 mole of electron. The student plans blah blah blah, और हमें प्रैक्टिस दिया था, हमने ये डायग्राम बना ली थी इसकी, ठीक है, हमने कॉपर के लिहाज से हमने इसकी डायग्राम कल बना ली थी, courtesy of Misbah, Alma and Yusra. Two of the hazards using copper 2 sulfate solution are given below. For each hazard, state a precaution other than eye protection and a lab coat that the student should take when carrying out the experiment. Hazard copper 2 sulfate causes skin irritation. तो इसके लिए क्या हम प्रिकॉशन इस्तेमाल करेंगे? वेयर ग्लव्स, राइट, दैट्स गोइंग टू बी द मोस्ट। और दूसरी वाली नीचे वाली के लिए कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन इज टॉक्सिक टू aquatic life. Don't put in 6. So don't dispose of down the drain. Don't dispose it down the drain. इसको ड्रेन के नीचे नहीं डालना। अच्छा, don't write dispose of properly because dispose of properly समझ नहीं आ रहा क्या बताने की कोशिश कर रहा है, राइट। अगर कोई ऐसी चीज है जो पानी में मसला कर सकती है तो डोंट डिस्पोज इट ऑफ द ड्रेन, या लिख दो कि यूज अ क्वांटम समथिंग सॉल्यूशन टू डिस्पोज, यूज अ क्वांटम, व्हाट इज अ क्वांटम समथिंग सॉल्व। हाँ, ये क्या बोल रहे हो भाई, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस क्वांटम समथिंग सॉल्व इज। सो खैर बहरहाल कि कोई भी ऐसी सोल्यूशन है जो पानी में मसला कर सकता है एक्वाटिक लाइफ के साथ, तो उसको बस आप ये लिख दो कि डिस्पोज इट प्रॉपर्ली, डिस्पोज इट ऑफ, डोंट डिस्पोज इट डाउन द ड्रेन। या फिर ये लिखो कि अगर उसके बारे में ये लिख दो कि बहुत ज्यादा इसको डाइल्यूट कर दो, यू कैन ऑल्सो से कि मेक इट वेरी वेरी डाइल्यूट, मेक इट वेरी वेरी डाइल्यूट एंड देन डिस्पोज इट ऑफ द ड्रेन, वो कर सकते हो आप। तो यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है कि मेक solution very dilute before disposal. अच्छा, उसके आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? द स्टूडेंट कैरिड आउट द इलेक्ट्रोलिसिस फॉर एक्जैक्टली 30 minutes with a current of 0.5 amperes. After the electrolysis was finished, the student removed the electrodes. The electrodes were then carefully washed in water and then dipped in propanol. The electrodes were dried by allowing the propanol to evaporate. State the measurements the student would need to record to calculate the mass change of an electrode. Include the appropriate unit. तो उसको कौन सी मेजरमेंट जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और उसका यूनिट भी आप मुझे बताएं। 1 मार्क का है ये। रीड द क्वेश्चन अगेन एंड देन टेल मी। इलेक्ट्रोड का मास बिफोर एंड आफ्टर द experiment. Difference in before and after electrode? Yes, exactly. You would need to measure the mass of the electrode before and after the experiment. That's pretty much it. बस यही करना हमें. So we'll say, अच्छा, they're saying what measurements you'll need to record ना, तो दो जो measurements हमने record करनी है उनका लिखना है. Don't say difference because difference आप record नहीं कर सकते. Difference आप find out करते हो, ठीक है? You would say mass of electrode before electrolysis और इसका यूनिट क्या होगा? What's the unit going to be for this? Grams. That would be in grams. Actually, order mass of electrode after electrolysis that is going to be in grams as well. ठीक है जी? Yes, perfect. How do they measure electrode, by the way? Like उसको direct measuring balance पर रख देते हैं? हाँ, exactly. Just put it on the measuring balance. ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उसको उसके ऊपर डाल दो, उसका मास आ जाएगा। अच्छा, calculate the charge passed down the copper 2 sulfate solution during the electrolysis experiment using the formula shown. Charge equals to current into time. तो भाई कर लेते हैं। करंट क्या था? करंट था 0.5 amperes, टाइम था 30 minutes था। So 0.5 into 30 into 60. What is the charge working out to be? 900. हाँ एग्जैक्टली, बहुत ही बच्चों वाले सवाल अभी तक पूछे हुए। 900 कूलम्स आपके पास चार्ज आ गया। The mass change of the anode was 0.282 grams. Calculate the amount of in mole of the copper lost from the anode. Give your answer to 3 significant figures. तो मास कैसे मोल्स कैसे निकलते हैं? मोल्स निकलते हैं थ्रू मास अपॉन MR/AR, राइट? सो मास डिवाइड बाय द MR/AR. मास क्या है तुम्हारा?
तुम्हारा मास है 0.282 डिवाइडेड बाय mr क्या है तुम्हारा 63.5 है। इस समन सेइंग एनीथिंग? अच्छा यार मेरे को फोन बज रहा है, सही है। सो इट इज 4.44 इंटू 10⁻³ हमारे पास हमने थ्री सिग्निफिकेंट वैल्यू इस्तेमाल करी, इसको थ्री सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेते हैं 4.44 इंटू 10⁻³ आई होप अभी तक कोई भी ऐसा कंफ्यूजिंग सवाल ना हो, एक एक मार्क के इन्होंने बच्चों वाले सवाल आपको आपको पूछे हुए हैं। नीचे क्या पूछते हैं, यूज योर आंसर्स टू डी एंड ई टू कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम द एनोड। ठीक है जी। अब आपने जो ऊपर निकाला है, यू हैव वर्कड आउट व्हाट वाज द चार्ज दैट फ्लोड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। दे आर आस्क्ड, और आपको पता है कि कितने मोल्स रिमूव हुए हैं, वो बोल रहे हैं आपको 1 मोल ऑफ कॉपर हटाने के, आप हमें मोल्स बता दो। 1 मोल ऑफ कॉपर हटाने के लिए आप मुझे हमें चार्ज बता दो। तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? यूनिटरी मेथड, विल डू द यूनिट मेथड। भाई मुझे पता है कि 4.44 इंटू 10⁻³ को हटाने के लिए मुझे 900 कूलम लगे, राइट? सो हाउ मेनी आई एम गोइंग टू रिक्वायर फॉर 1 मोल। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है इसका, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। 4.44 इंटू 10⁻³ को हटाने के लिए मुझे 900 कूलम लग गए। अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं 1 मोल का बता दो तुम्हें कितने कूलम लगेंगे, कितने कितने एक्स कूलम लगेंगे तुम्हें। सो यू जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वर्क आउट वट एवर एक्स इज वर्किंग आउट टू बी। सो 900 डिवाइडेड बाय 4.44 into 10⁻³ what is the answer working out to be? Why is it so different from last year? एक सेकेंड। 900 divided by 4.44 into 10⁻³ 202,702 नहीं आ रहा मेरा, तो 202,702 आ रहा है। 202,702 आ रहा है, तो x is coming out to be 202,702। इसको थ्री सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेते हैं, यानी 203 या 2.03 इफ यू अलाउ इंटू 10⁻, 1 2 3 4 5, 2.03 इंटू 10⁻5 कर देते हैं। सही है। अच्छा फिर क्या है, द थ्योरेटिकल चेंज the theoretical charge required to remove 1 mole of copper from the anode into solution as copper to ions is 193,000 coulombs which is very close to your value। ठीक है, आपकी और इसकी वैल्यू में सिर्फ 10,000 का फर्क है, तो देयर सेइंग कि वही वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू दीजिए अपने अपने हिसाब से खुद देके आपको। द फैराडे कांस्टेंट इज 96,500 कूलम पर मोल। एक्सप्लेन व्हाई द थ्योरेटिकल चार्ज इज ट्वाइस द फैराडेज कांस्टेंट। वेरी गुड मिसबा। मिसबा कह रही हैं भाई याद है क्या कि कॉपर जब सॉलिड से तब्दील होता है कॉपर 2+ में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। सो द प्रॉब्लम इज दैट इट हैज गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब भी एक या तो जो है वो एनोड पे क्या होगा, एनॉक्स ऑक्सीडेशन होगी और सब इलेक्ट्रॉन होगा कैथोड पे। हाँ, तो जब भी ये जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा, ठीक है, तब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, और जब भी एनोड से निकलेगा तब भी तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सो द थिंग इज कि आपने कुछ गलत नहीं किया इसमें, बस ये है कि जैसे आपने कहा था ना हम ZF निकाल देते, IT ओवर ZF, तो वी यूज टू फाइंड आउट दिस Z, ये Z क्या है, तो उसका मकसद ये था कि हमें पता रहे, बिकॉज हर इक्वेशन के लिहाज से वो Z डिफरेंट हो सकता है। सो वी विल से दैट 2 moles of electrons, it is twice as 2 moles of electrons are required to remove 1 mole of copper solid। ठीक है, A possible source of error is not drying the anode at the start of the experiment। कह रहे हैं possible source of error ये है कि आपने एक्सपेरिमेंट के शुरू में एनोड को ड्राई नहीं किया, उसको एज इट इज ले लिया। Explain the effect if any on the calculated value of the Faraday constant if the anode is wet at the beginning of the experiment but dry at the end। तो क्या फर्क पड़ेगा और Faraday's constant की वैल्यू को क्या मसला होगा उसके साथ? Initial mass will be greater. So can I say that what's going to happen is the mass and hence the moles will work out to be more, because
आपका मास पहले ज्यादा आ रहा होगा, योर मास विल बी मोर, बिकॉज जब चीज गीली होती है उसका मास ज्यादा आता है, ठीक है, उसमें पानी का भी मास आता है। तो आप गलती से क्या ले लोगे, आप उस एनोड का पानी के साथ मिला के मास ले लोगे, सो उसका मास ज्यादा आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप मोल्स निकालोगे तो वो मोल्स भी ज्यादा आएंगे। अब इससे हमारी फेरेडेज कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? वेल, फेरेडेज कांस्टेंट अगर हम यहाँ पे देखें, क्या बोला हुआ था? फेरेडेज कांस्टेंट इज द चार्ज इन कूलम्स कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चार्ज इन कूलम्स कैरी कर रहे हैं, जिसका हमने कुछ यहाँ पे हिस्सा निकाला है, राइट। वी वर्क दिस आउट, वी वर्क दिस वैल्यू आउट। इसको अगर देखोगे तो करंट तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, मसला क्या आएगा, हमारे मोल्स बढ़ जाएंगे ना, हमारे मोल्स बढ़ जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी वैल्यू डिक्रीज आएगी। सो द प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू कम ओवर हियर इज के आपका मास बड़े होने की वजह से आपके मोल ज्यादा आएंगे। अब करंट और चार्ज वगैरह सब कुछ वही है, लेकिन ज्यादा मोल से जब डिवाइड करोगे तो फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू कम आ जाएगी देन द एक्चुअल वैल्यू दैट वाज रिक्वायर्ड, सो गोइंग टू से दैट इट विल बी लेस। समझ में आया ये, हाउ आई एम रिड्यूसिंग इट विल बी लेस? बिकॉज हमने जो x निकाला था उधर, वो हमने निकाला है थ्रू चार्ज ओवर मोल्स, ठीक है जी। और फिर हमने जो है वो उसको एक मोल में कन्वर्ट किया है। एक बार वापस समझा देता हूँ, देखो अल्मा हमने ये x निकाला ना यहाँ पे, ये क्या था, यूज योर आंसर्स टू डी एंड ई टू कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम द एनोड, ठीक है। और फैराडेज कांस्टेंट क्या था, इट वाज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमारी वैल्यू 2 टाइम्स आ रही है, वो तो हम समझ गए थे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। अभी फिलहाल उसको साइड में रखते हैं, उसको बस डिवाइड बाय 2 करना है टू गेट द फैराडेज कांस्टेंट ना, हम अपनी वैल्यू को बस डिवाइड बाय 2 करना है टू गेट द फैराडेज कांस्टेंट। मुझे मैं क्या समझा रहा हूँ इधर बात, अल्मा के जब तुम गीला एनोड का मास मेजर करोगी, then you will measure the mass of a गीला एनोड, the problem that's going to happen is कि आपका जो मास आएगा, ठीक है, वो ज्यादा आएगा क्योंकि एनोड गीला है, उसमें सिर्फ सूखे हुए एनोड का मास नहीं आएगा, तो आपका मास ज्यादा आएगा। जब मास ज्यादा आएगा तो ये जो मोल्स हमने निकाले थे इस पार्ट में, ये भी ज्यादा आएंगे, बिकॉज योर मास इज मोर, सो योर मोल्स विल आल्सो बी मोर। व्हेन योर मोल्स आर मोर, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट x is going to work out to be less, the x is going to be work out to be less, and therefore जब आप उसको डिवाइड बाय 2 भी करोगे फैराडेज कांस्टेंट निकालने के लिए, तब भी आपकी वैल्यू कम आएगी फैराडेज कांस्टेंट की, ठीक है। No, Yusra, but wouldn't the initial greater mass result in a smaller mass change on anode? No, not a smaller change in mass on the anode. Wouldn't it result in a greater mass? देखो ना क्या हो रहा है? Explain the effect, if any, on the cathode value of the Faraday constant if the anode is wet at the start of the experiment but dry at the end. Yusra, it's not wet at the end. शुरू में wet थी, end में dry हो गया, यानी उसने मास तो अभी उतना ही लूज करना ना युसरा, अभी भी वो 4.44 × 10³ मोल्स ही लूज करेगा, उतना ही मास लूज करेगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है युसरा, तुम्हारे पास उसमें एडेड पानी का भी मास आ जाएगा, तुम्हारा मास बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। द डिफरेंस इन मास विल बी ग्रेटर, बिकॉज देखो पहले क्या हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 23 ग्राम्स का एनोड था और उसमें से 21 ग्राम्स आ गया अब तुम्हारे पास, दिस वॉज बिफोर, ठीक है। लेकिन अब तुम्हारा क्योंकि वो एनोड वेट था तो 23.2 आ रहा था, और अब सुखाने के बाद वापस से क्या हो गया, तुम्हारा 21 ग्राम्स आ रहा है, राइट। सुखा दोगे तो पानी तो निकल जाएगा ना, ये लिखा हुआ था, बट ड्राई एट द एंड, सो देयरफॉर पानी का 0.2 वापस यहाँ पे नहीं आ सकता, इट विल इज गॉन नाउ। सो यहाँ पे तुम्हारे पास डिफरेंस आ रहा है 2.2 और यहाँ पे तुम्हारे पास डिफरेंस आ रहा है 2। It will be less at the end, right? Daniel, what will be less at the end, right? Mass. हाँ, अगर तुम वो वाला एनोड ले रहे हो, वो वाला मतलब इफ यू टेकिंग द एनोड, तो एनोड लूजेस मास, कैथोड गेन्स मास, ठीक है। एनॉक्स पे होती है ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन। तो ऐसे भी सवाल हो सकता है कि तुम्हारा मास लूज हो रहा है, और ऐसे भी सवाल हो सकता है कैथोड तुम्हारा मास गेन कर रहा है, ठीक है। अभी एनोड वाले पे लॉस की बात हो रही है, वरना कैथोड पे भी एग्जैक्टली वही है, बस मास गेन होता, सारी कैलकुलेशन वही है, बस उसमें मास गेन होता है, ठीक है दानियल। नहीं, दिस इज नॉट अनदर फैक्ट, रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन P4, यू हैव डन द क्वेश्चंस विद मी, हमने सारा P4 में करा हुआ है ये सब कुछ, भूल गए वो अलग बात है। लेकिन एनोड पे लॉस इन मास होता है, कैथोड पे गेन इन मास होता है, एनोड इज एनॉक्स, कैथोड इज रेड कैट, ठीक है जी। तो बस उसमें कुछ खासा कोई फर्क नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं है कुछ भी खासा, बस ये होगा कि -2.82 की जगह जो लिखा हुआ होगा ना, ये लिखा हुआ होगा +2.82, दैट्स इट, ठीक है। The student wanted to ensure that the anode was completely dry at the end of the experiment, decided to evaporate off the propanol using a Bunsen flame. The student noticed some blackening on the surface of the copper. Suggest what caused this blackening? Copper blackening क्यों हो गई भाई? Why did the copper become black?
कार्बन सूट है, नहीं कार्बन CuO नहीं है, इनकम्प्लीट कंबशन हुई है और आपको कार्बन सूट जो है वो इधर डिपॉजिट हो गई है. सो इनकम्प्लीट कंबशन हैज ऑकर्ड, इनकम्प्लीट कंबशन हैज ऑकर्ड, और प्रोपेनॉन जल के वो क्या बन गया है, वो बन गया है कार्बन सूट. एंड कार्बन सूट हैज बीन deposited on the copper. So most probably इस बच्चे को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, बिकॉज इट कुड कॉज प्रॉब्लम्स. इफेक्ट वाली बात प्लीज कैन यू रिपीट, इफेक्ट वाली बात ये वाला, दिस विल बी लेस, इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स ना. मतलब बिकॉज अब तुम्हें मास मेजर करना है, अब तुम या तो इसको पेपर के टॉवल से पोंछोगे या कुछ और करोगे, तो हो सकता है सारा कार्बन ना हटे. So it was better to just let the propanol fly off, evaporate off, than to burn it. ठीक है, it was better to completely जो है वो का कैसे पता चला, because propanol है ना, प्रोपानोन यूजिंग अ बंसन ब्लू बंसन फ्लेम से जला रहा है प्रोपानोन को. अब प्रोपानोन जो है वो इवेपोरेट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जल भी तो जाएगा उस कॉपर इलेक्ट्रोड, और जब जलेगा तो ब्लैकनिंग. कॉपर ऑक्साइड इज नॉट अ ब्लैक ऑक्साइड, ठीक है, मेटल्स के ऑक्साइड ज्यादातर ब्लैक ऑक्साइड नहीं होते, एक्सेप्ट आई थिंक जिंक शायद. तो कॉपर ऑक्साइड इज नॉट ब्लैक. ये जो ब्लैकनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉपर होती है, होती ही कार्बन शूट की वजह से, ठीक है. जब कोयला कोयला कैसा होता है, काला होता है. इसी अलावा ऐश कैसा होता है, काला होता है. किसी चीज को जलाते हो क्या हो जाता है, काली हो जाती है, तो वो कार्बन होता है, ठीक है. सो दिस इज द ब्लैकनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ कॉपर इज टेलिंग मी दैट देयर वाज एन इनकम्प्लीट कंबशन. कार्बन इज द मटेरियल, ठीक है. जब भी ज्यादातर काली होती है ना चीज जलाने के बाद, तो वो कार्बन की वजह से होती है और किसी कंपाउंड की वजह से नहीं होती. अच्छा, और कुछ पूछा हुआ है, कार्बन सूट क्या है, कार्बन है. कार्बन सूट उसको कहते हैं ना जो पीछे पीछे काला काला रह जाता है, उसको सूट कहा जाता है. तो नहीं भी लिखो वो एक ही बात है, सही है. सूट बस उसको काले काला जो पीछे रहता है उसको बोलते हैं. इसको ऐसे याद रखो ना, जैसे चीजें जब जलाते हो, टिश्यू पेपर जलाओ आज, थोड़ा सा टिश्यू पेपर लेके जलाना, वो जो काला काला रह जाता है पीछे, वो क्या होता है, वो कार्बन होती है. वो इनकम्प्लीट कंबशन होती है कार्बन की, दैट इज द लेफ्ट थिंग बिहाइंड थिंग इज कार्बन. अच्छा जी, द स्टूडेंट कैलकुलेटेड the mass change of the anode and cathode after the experiment was complete. देख लो दानियल, suggest one reason why the mass gained at the cathode is not the same as the mass lost at the anode. Assume the student has recorded the mass changes correctly. So भाई mass change of anode -2.82 था, mass gained at cathode जो था वो 0.217 था. बाकी mass कहाँ गया, क्या ख्याल है? Some dissolved in the electrolyte. It can't really dissolve in the electrolyte. In solution maybe, yes, it's in the solution, but it's deposited in at the bottom of the solution, ठीक है. Yes, some of the mass got deposited at the bottom. वो नीचे accumulate हो गया बेचारा, वो उधर से उधर तक travel ही नहीं कर पाया. So it's now in the solution residing at the bottom. So you'll say some copper falls off the anode and is deposited at the some copper falls off the anode and deposited at the bottom of the solution. मेरा बच्चा दानियाल, जो ब्लैकनिंग हुई है ना वो ड्राइंग के दौरान हुई है, ठीक है. सो जब अभी अपनी इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इम्प्योरिटीज, एक मिनट बताता हूँ. जब तुम ये कार्बन का कर रहे थे, तो तुम ये अपनी इलेक्ट्रोलिसिस कर लेने के बाद तुमने प्रोपेनॉन में उसको सुखाया है ना. तो ये तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद है, ये इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का कोई ताल्लुक नहीं होगा. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस दिस कार्बन इज नॉट गोइंग टू प्ले अ रोल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमने ड्राई ऑफ किया इसको. अच्छा, दूसरी बात इधर आ जाती है कि अच्छा अल्मा पूछ रही है इम्प्योरिटीज हो सकता है. अल्मा इम्प्योरिटीज, I'll have to search that, दो मुझे नहीं लग रहा है impurities होगा. The reason for that is अल्मा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में impurity हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. Since you have copper electrode, since you have a copper sulfate solution, so the one that's going to transfer from here to there is going to be copper. होगा वो कॉपर ही, ठीक है. उसके अलावा कोई चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती. So even if you have any impurities, तो दे आर गोइंग टू रिमेन ऑन द एनोड, वो जाएंगे ही नहीं कहीं से, वो उसके पास उसके उधर से निकल के कहीं नहीं जाते. दे विल नॉट ट्रैवल एनीवेयर, ठीक है.
अच्छा, दूसरी बात आ जाती है मरियम नीचे क्यों डिपॉजिट हो रहा है। मरियम इसलिए नीचे डिपॉजिट हो रहा है कि जब तुम हम ये एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, तो व्हाट आर वी रिलाइंग ऑन मरियम इज दैट, इस पे क्या हो रहा है, वी रिलाइंग ऑन द फैक्ट दैट एनोड पे हमारे पास हो रहा है Cu सॉलिड बन रहा होगा Cu2 plus 2E minus, right? And the copper 2 plus that are reaching from the solution to over here, वो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, कॉपर 2 plus 2E minus, यहाँ पे बन रहा है वो कॉपर सॉलिड, ठीक है। दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग। अब मसला क्या है मरियम, कि अब यहाँ से तो ये इलेक्ट्रोड डिसॉल्व कर रहा है सोल्यूशन में, इट इज गोइंग टू मिक्स इन द सोल्यूशन, और यहाँ से वो सोल्यूशन में से निकल के उसने यहाँ पे उसने अपने वापस सॉलिड फॉर्म में आना है। और मसला क्या है मरियम, कि जो डिसॉल्व कर रहा है उसमें से कुछ हिस्सा हो सकता है वो डिसॉल्व करके वो यहाँ तक पहुंचे ही ना, वो यहीं पे नीचे ही बेचारा अपने मास की वजह से नीचे ही डिपॉजिट एट द बॉटम। सो यू माइट गेट अ डिपॉजिट एट द बॉटम बिकॉज द कॉपर 2 plus were not able to transfer from the एनोड टू द कैथोड, वो नीचे ही चले गए बेचारे, सिंक टू द बॉटम हो गए। दे डिड नॉट, इतना जो है वो एफिशिएंट हमारी एक्सपेरिमेंट नहीं की। Sir, my teacher told us कि if the impurities are less reactive than copper, so it will fall off at the bottom. My teacher told us if the impurities are less reactive than copper, so it will fall off at the bottom. Acha, what I think your teacher is getting to is he's discussing electroplating very very specifically. ठीक है, he is discussing electroplating very very specifically. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि ये ऐसी एक्सपेरिमेंट होती है, अब तुमने फॉर एग्जांपल एक तुम्हारी केटल है, लेट्स से दिस इज अ केटल, और तुमने उस केटल को जो है वो लेट्स से तुमने उसको सिल्वर कोट करना है, तो तुमने सिल्वर का यहाँ पे एनोड रखा, ठीक है, और वो केटल है तुम्हारी। अब और तुम अब केटल पे हल्का सा सिल्वर का कोट होना चाहिए ऑलरेडी। तो ये होता है कि जो तुम्हारे पास जो इधर से सिल्वर होगा वो उधर इस सिल्वर पे डिपॉजिट हो जाता है। दिस सिल्वर दैट विल गेट डिपॉजिट ओवर हियर, इसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं होगी, मतलब ये इम्प्योर सैंपल हो सकता है लेकिन इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, ठीक है। मुझे सर्च करना पड़ेगा, हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली द इम्प्योरिटी वाला आंसर इज आल्सो एक्सेप्टेड, क्योंकि बिकॉज इम्प्योरिटीज हैं तो वो नीचे गिर सकती हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज और हमारा जो कॉपर जो इम्प्योर होगा वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन बहुत सारा उसमें से पीछे भी रह जाता है। आई हैव टू सर्च दैट, हो सकता है इम्प्योरिटीज आल्सो एन एक्सेप्टेड आंसर, लुक्स सही, बट आई डोंट नो, मुझे देखना पड़ेगा इम्प्योरिटीज वाला। तो यू आर करेक्ट कि इम्प्योरिटीज जो है वो नहीं जाती हैं, इम्प्योरिटीज या तो उधर एनोड पे रह जाएंगी या तो नीचे गिरती हैं सॉल्यूशन में अलोंग विद। लेकिन अभी जो हमारा जो सही है, आई हैव टू सर्च दिस, मुझे इम्प्योरिटीज वाले का टाइम दो, मैं इम्प्योरिटीज वाले का देख के बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये हो गया है कंप्लीट, वी आर डन विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं ये वाला सवाल नहीं करवा रहा, सिर्फ जल्दी से गो ओवर कर देता हूँ, इट्स वन ऑफ द मोर इजियर क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको एक अपैरेटस दिया हुआ है, उसमें से बोलो भाई ये, उसमें से आपको बोला हुआ है कि आप दो तीन चीजें आप जो है वो लेबल कर दो। आपने बता दी वोल्ट मीटर, आपने बता दी सॉल्ट ब्रिज, आपने बता दिया 1 मोल पर डीएम क्यूब की कॉन्सेंट्रेशन। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द स्टूडेंट प्लान्स टू यूज सॉल्यूशंस ऑफ द लोकल कॉन्सेंट्रेशन, कैलकुलेट द वॉल्यूम नीडेड टू प्रिपेयर 100 cm क्यूब ऑफ दिस थिंग। कर लोगे C1V1 इक्वल टू C2V2, ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा। फिर उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब हाउ यू वुड प्रिपेयर द सॉल्यूशन। आई होप यू गाइस विल बी एबल टू डू दिस एज वेल नाउ। फिर आपको टेबल बनाने को दिया है, आपने टेबल बनाना है। फिर उसका क्या बोला हुआ है, फिर उसका क्या है, प्लॉट बना दो, प्लॉट बना लेना है। प्लॉट बनाने के बाद क्या बोला है, सर्किल द मोस्ट अनोमलस पॉइंट ऑन द ग्राफ एंड सजेस्ट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ द अनोमलस पॉइंट सर्कल इन D1 रिलेटेड टू द वेस्ट लाइन ऑफ वेस्ट। अच्छा, ये हम बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज ही प्लॉटिंग, he is plotting complete column 3 of the table to produce the complete ठीक है, और इसने जो है वो ये प्लॉट किया है। अच्छा, so the student is careful to ensure that all solution used are at the same temperature in the experiments. The thing that is actually measuring is the electrode potential of the manganese half cell, और इसने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेटअप किया है, कॉपर 2 और मैंगनीज का हाफ सेल है, ठीक है। तो इसने मैंगनीज का हाफ सेल, मैंगनीज का जो है वो वोल्टेज कर रहा है, और इसने log Mn Z+। ओके, कैन यू थिंक व्हाई आर वी आर गेटिंग एन अनोमलस पॉइंट। इसमें क्या होगा, बेसिकली वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn की क्या ले रहा है, लॉग ले रहा है,
एंड जो है प्लॉट कर रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगेंस्ट इट. सो व्हाट डू यू थिंक इज अ रीजन फॉर दैट? क्या मसला किया हो सकता है इस बच्चे ने यहाँ पे? वंस अगेन आई वुड एडवाइज सी के वो पॉइंट होना कहाँ चाहिए था असल में, और वहां पे क्यों नहीं आ रहा, उस तरफ से सोचो कि क्या हुआ है, इसका मसला क्या है. इट्स शोइंग मोर कॉन्सोनेंट देन इट शुड बी. यस, वेरी गुड इकरा. नो, वर्ड मीटर रीडिंग इज नॉट रॉन्ग. द थिंग इज के इस बच्चे ने वंस अगेन देखो, जब भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अनोमलस पॉइंट क्या आ रहा है, क्यों इसने मसला किया है, तो इट्स मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू बी द मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट ही. ठीक है, अपैरेटस में ज्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, अपैरेटस रीडिंग गलत नहीं शो करता यूजुअली, सो नॉट गोइंग टू राइट दैट एज द थिंग. प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इसका अनोमलस पॉइंट आ रहा है, इसको होना चाहिए था यहाँ पे, इट इज सपोज टू बी ओवर हियर. ठीक है, अब यहाँ पे होने का मतलब क्या था? यहाँ पे होने का मतलब ये था कि जो इस बच्चे ने जो किया है ना, मोस्ट प्रोबेबली द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज गॉटन आउट इज रॉन्ग. ठीक है, इसने टेबल तो बना लिया, कहाँ बनाया इसने टेबल? टेबल तो इसने बना लिया और सब चीजें करनी है इसने. मसला क्या है? मोस्ट प्रोबेबली इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन या तो गलत निकाली है, या तो सोल्यूशन ही गलत बना दिया और उसकी गलत कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखी है. That's why you're getting an anomalous point over here, because this is not the correct concentration. ठीक है, इस पॉइंट को जो है वो अगर तो जो है वो इसने वुप्स ये नहीं करना था ना. व्हाट आर द रीजंस दैट कुड बी ओवर हियर? भाई देखो, ये पॉइंट जो है इसने मोस्ट प्रॉब्ली मसला मतलब हरकत की, व्हाट हैज एक्चुअली गॉन रॉन्ग. अच्छा, एक सेकंड और चीज चीज भी देख लेते हैं. लेट मी सी लॉग ऑफ. ये क्या, एक सेकेंड, लॉग ऑफ कौन सी वैल्यू है ये? लेट्स ऐसी सी लॉग ऑफ. ठीक है. अच्छा, सो व्हाट आई थिंक इज दिस कि इस बच्चे ने मसला क्या किया, इस बच्चे ने मसला ये किया है कि एक्चुअली ये जो पॉइंट था ना, एक्चुअली में दिस पॉइंट वाज सपोज टू बी ओवर हियर, यहाँ पे होना चाहिए था. इसने कंसंट्रेशन गलत निकाल लिया. द मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन टू दिस इज गोइंग टू बी, भाई वोल्ट मीटर रीडिंग अपनी सही दे रहा है. प्रॉब्लम क्या है, इसने ये जो इसने कॉन्सेंट्रेशन बनाई है ना सोल्यूशन की, वो उसने गलत लिख ली है अपने पास. असल में ये कंसंट्रेशन इस पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रही थी, इसने आगे लगा दिया है पॉइंट. हो सकता है या तो टेबल प्लॉट करते हुए कोई मिस्टेक हो गई है, या तो ये हो सकता है कि इसने सॉल्यूशन गलत कंसंट्रेशन बना दी, इसको इसका बनाना नहीं था, इसको किसी और चीज का बनाना था, और उसने गलत करके उसने कोई बहुत बड़ा बर्न मार दिया. सो यू आर गोइंग टू से दैट मोस्ट प्रोबब्ली द सॉल्यूशन हैज मेड एन एरर व्हाइल मेकिंग द there is an error in the making of the solution. The concentration is not as expected, the concentration is not at the value that he expected. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात जो है बस सही है, आई थिंक ये काफी है. अच्छा, थोड़ा कर हम सही है. सो यू वांट टू राइट ओवर हियर कि क्या लिख लेंगे हम? ये लिख लेंगे द कॉन्सेंट्रेशन of the solution has either been recorded incorrectly or the concentration, yeah, बल्कि the concentration of the solution and the concentration table does not match, and the concentration in the table do not match. सर नॉइस्ट इक्वेशन गिवन होती है इकरा, नॉइस्ट इक्वेशन तुम्हें याद करनी है फॉर P4. इधर गिवन होती है, यूजुअली गिवन होती है P4 में, लेकिन अगर नहीं गिवन हो तो डोंट बी लाइक कि मुझे नहीं पता, उधर कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करने आएगा. नॉइस्ट इक्वेशन याद करके जानी है तुम्हें. ठीक है, कभी गिवन होती है, मोस्ट टाइम्स गिवन, कभी कभार गिवन नहीं होती है. ये सबको समझ में आया एनोमलस पॉइंट वाला, दैट ही हैज मोस्ट प्रोबब्ली रिकॉर्डेड द कंसंट्रेशन इनकरेक्टली, द कंसंट्रेशन इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनोमलस पॉइंट, कोई परेशानी इसमें?
ठीक है, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं था, बस ये एनॉमलस वाला पॉइंट मुझे डिस्कस करना था। फिर उसके बाद वो उसने आपको इक्वेशन दी हुई है, आपने y इक्वल्स टू mx प्लस c लगाना है, आपने देखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ से निकलेगा, मैं नहीं बता रहा, आपने ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट निकाल के क्या निकलेगा वो भी मैं नहीं बता रहा, फिर आपने जो है वो z निकालना है, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीज आयन निकालना है, और लोअरिंग दिस एंड यू जस्ट वांट टू गिव दिस आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है, क्यों नहीं करवा रहा, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ग्राफ के क्वेश्चन से प्रॉब्लम है, बट द थिंग इज कि इसमें कुछ ऐसा एक्सट्रीम कुछ है ही नहीं, हमें ग्राफ का क्वेश्चन ऑलरेडी लीनियर लॉ वाला करके आ चुके हैं, सो बार बार वही करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट के लिहाज से कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस इक्वेशन डिफरेंट है और सवाल थोड़े बहुत डिफरेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट लीनियर लॉ सब कुछ वैसा का वैसा ही है।